नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बराक घाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने सांस्कृतिक व्यक्तित्व गौतम भट्टाचार्य का हुआ महाप्रयाण। बराक घाटी में छाई दुखद माहौल। हैलाकांदी जिले में अपनी छात्रा को कुप्रस्ताव दिए जाने पर शिक्षक को किया गया मारपीट। पुलिस ने किया गिरफ्तार। इलाके में छाई हुई है नाराजगी की दौड़। बोरखोला लालबाग क्षेत्र में श्रमिकों के साथ सरकार की आपसी बातचीत की सभा हुआ नाकामयाब। जान जाने पर भी अपने चारागाछ को नहीं छोड़ेंगे, कहा श्रमिकों ने। शेजर के काटा रोड क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 स्कूटी चालक बुरी तरह घायल। गैर जिम्मेदाराना डांपर यातायात के क्षेत्र में लोग झेल रहे हैं परेशानी। शेजर के साउथ पॉइंट स्कूल में शुरू हुआ ग्रीष्मकालीन शिविर। छात्र छात्राओं में देखी जा रही है खुशी की माहौल। उच्च माध्यमिक विज्ञान शाखा में भर्ती के लिए उत्साह व्यक्त कर सकते हैं छात्र छात्राएं। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। बराक घाटी के जाने माने व्यक्तित्व, कला संस्कृति जगत के ध्रुवतारा, आर्य संस्कृति बोधनी समिति के प्रतिष्ठाता तथा जाने माने व्यक्तित्व गौतम भट्टाचार्य का एकाएक निधन हो गया है। उनके निधन होने पर पूरा बराक घाटी में दुखद माहौल छाई हुई है। सांस्कृतिक महल के साथ साथ बुद्धिजीवी व गुणीजनों के बीच भी दुखद माहौल इन दिनों मंडरा रहा है। वंग साहित्य से शुरू कर कई संगठन के साथ युक्त रहे गौतम भट्टाचार्य भाषा, शिक्षा, धर्म, संस्कृति सहित कई और गुणों अधिकारी थे। बहुगुण के अधिकारी गौतम भट्टाचार्य के निधन पर हर एक सुस्त समाज के लोग इन दिनों बेहद शोक के माहौल में डूबे हुए हैं। शुक्रवार शाम को उनकी पार्थिव शरीर को लेकर एक शोभा यात्रा निकाला गया। शोभा यात्रा में हजारों लोगों ने कदम मिलाते हुए उनको अपना अंतिम श्रद्धा का श्रद्धांजलि प्रदान किया। सिलचर के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कार्य संपन्न किया गया। गौरतलब है कि संस्कृति प्रेमी लोगों के बीच उनके निधन पर बेहद दुखद माहौल बनी हुई है। অভিনন্দন পত্র তুলে দিয়ে সেদিন সেই ঐতিহ্যের কথা তার মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। সেই কথাগুলি তুমি ভালো মনে আবেগের বিষয় আনন্দ। वंदे मातरम। भारत माता की भारत मातरम। वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। 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 मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की। সেই মহাপ্রাণ যাই হোক, আজকে সকালে উঠে যখন মর্নিং ওয়াকে যাব তখন হঠাৎ করে বিপ্লবদার মেসেজ। এত সকাল বিপ্লবদার মেসেজ করে না দেখলাম 3টার সময় গৌতমদা চলে গেছে।
বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে বা পরবর্তীকালে গৌতমদা নিয়ে আলোচনা সভা হবে, সেখানে আমরা বলবো। কিন্তু যেটা এই মুহূর্তে 3-4 জন বলেছেন, তার থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি যে গৌতমদা কে ছিলেন। এমন একজন সমাজসেবক ছিলেন যা প্রচারে আসেনি, প্রচার বিরোধী ছিলেন প্রচণ্ডভাবে। আর আর্যকে নিয়ে যে স্বপ্ন, এই স্বপ্ন যারা ওনার পাশে রয়েছেন তারাই জানবেন, শুধু সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক সেটা জানবেন না। তো এইভাবে প্রচারবিহীন একটা জীবন সুজিতার মুখ থেকে এখন শুনলাম, প্রায় দীর্ঘ 45 বছর থেকে, 45 ইয়ার্স থেকে এই আর্য নিয়ে যে চিন্তাধারা, এই সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করা, তা উনি করে গেছেন। গল্পেতে শুনেছিলাম ওনার সাথে গল্প করে যে 2012, 14 বা 11 সাল, ওই সালগুলোতে একটা ওনারও একটু নিরাশা এসেছিল। এই সমাজের জন্য এতটুকু করা মানে কি, যে লক্ষ্যে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা, তার মানে শাসন ব্যবস্থায় কোনো না কোনোভাবে এমন একটা পার্টি আসতে হবে, যে পার্টি শাসন ব্যবস্থা আসলে হয়তো আমাদের যে স্বপ্ন, এই স্বপ্ন সাকার হবে। সেই অবস্থায় উনি কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি যেহেতু সমাজ নিয়ে চিন্তা করে, দেশ নিয়ে চিন্তা করে, তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে ওনার আত্মিক সম্পর্ক ছিল। আর এই আত্মিক সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে আমরা অনেক কাজ ওনার থেকে শিখেছিও করেছি। বিধায়ক হওয়ার টিকিট পাওয়ার পর ওনার যে একটা আনন্দ বা একটা এক্সপেকটেশন, সেটা আমি অনুভব করেছিলাম। পরবর্তীকালে অনেক অ্যাডভাইস, আজকের দিনে আমি একজন অভিভাবক হারিয়েছি। বিধায়ক হওয়ার পর যে গাইডেন্সটা বিপ্লবদা আপনাদের সম্মুখে খুব সুন্দর করে বলেছেন, যে যেটা বানিয়ে আমাকে লিখে দেওয়া হয়েছিল, এটাতেই আমাকে গাইডেন্স দেওয়া হয়েছে, বলে দেওয়া হয়েছে যে তোমাকে বিধায়ক বানানো হয়েছে সমাজের জন্য, এই কাজ তোমাকে করতে হবে, আর তোমার পরিবারের আদর্শ এটাই ছিল। সেটা অনেক সম্বর্ধনা পেয়েছি, কিন্তু এখানে একটা আমি মনে হয়েছে যে আমার উপর কেউ শাসন ব্যবস্থা একটা রয়েছে, শাসন করার মতো একটা জায়গা রয়েছে। যদি আমি কোনো हाइलाकांदी जिले के नेताजी सुभाष हाई स्कूल के आनंद स्वरूप नाम के शिक्षक द्वारा हाइलाकांदी शहर के 13 नंबर वार्ड के एक किराए के मकान में छात्र छात्राओं को ट्यूशन किए जाने के दौरान अकेले पाकर एक छात्रा को कुप्रस्ताव दिए जाने के साथ साथ बलात्कार के प्रयास में लोगों ने शिक्षक को जमकर मारपीट किया। छात्रा की चीख के चलते आवासीय क्षेत्र के कई लोग इकट्ठा हो गए और जमकर स्कूल शिक्षक को पिटाई किया। 9वीं कक्षा के छात्रा का आरोप था कि उसे अकेले पाकर शिक्षक आनंद स्वरूप उनकी बलात्कार किए जाने का प्रयास किया। मुद्दे को लेकर लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। सदर थाने के ओसी इंस्पेक्टर तथा आमपी दावलागापू ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर हालात पर नियंत्रण पाया। যোৱাকালি সন্ধিয়া প্ৰায় 4টামান বজাত আমাৰ হাইলাকান্দি টাউনৰ যোনটো SS কলেজ, টাউনৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ 13 হয়, এই SS কলেজৰ বেক সাইডতে আমাৰ আনন্দ স্বৰূপ নামৰ এজন শিক্ষক আছিলে। তেখেতৰ ঘৰ হৈছে আপোনাৰ চনবিল কালিবাৰী। তেখেতে মানে ইয়াত ভাড়াঘৰ এটা লৈ পেলাই তাত মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ইয়াত টিউশ্যন পঢ়ায়। তো সেই টিউশ্যন পঢ়োৱাৰ সময়তে যোৱাকালি প্ৰায় 4টামান বজাত তাৰ তাত টিউশ্যন পঢ়িবলৈ অহা ছোৱালী এজনীক মলেষ্টেড কৰিছিলে। বেয়া মানে ভংগীমাৰে আৰু তাৰ মানে প্ৰাইভেট পাৰ্টছবিলাকত তেনেকৈ হাত দিয়া বুলি মানে কমপ্লেইন কৰিছে ছোৱালী, মানে ষ্টুডেণ্ট এজনী। তো সেইটো ঘটনাটো মানে ওচৰে পাঁজৰৰ মানুহবিলাকে গম পোৱাৰ লগে লগে সেই মাষ্টৰজনক তাৰ টিউশ্যন কৰা চেণ্টাৰটোতে আটক কৰি পেলাই এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ এটা হৈছিলে। একৰ্ডিংলি আমি বস্তুটো গম পাই পেলাই তাক ডিটেইন কৰিছোঁ। আৰু যিজনী ছোৱালী, সেই ছোৱালীজনীৰ গাৰ্জেনে পাছত থানাত আহি পেলাই কেছ এটা দিয়ে, আৰু সেই কেছ সংক্ৰান্তে এই আমাৰ মাষ্টৰজনক, আনন্দ স্বৰূপ কোৱা সেই মাষ্টৰ শিক্ষকজনক আমি তাৰ এগেইনষ্টত এটা কেছ আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ।
কেছ নম্বৰ 137/22 হাইলাকান্দি প্ৰেছৰ আৰু সেই কেছ সংক্ৰান্তে তাক আমি এৰেষ্ট কৰি পেলাই আমি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। विमानबंदर निर्माण को केंद्रित कर मैनागढ़ के क्षेत्र में इन दिनों तनाव का माहौल चल रहा है। सरकार और चाय बागान श्रमिकों की आपसी सभा पूरी तरह रंग में भंग पड़ गया है। सूत्रों के अनुसार जिस तरीके से सरकार समझा बुझाकर श्रमिकों को राजी करवाने की उम्मीद पर जुटी हुई थी, तो इसी दौरान श्रमिकों का मांग और सरकार के मांग के साथ आपसी भाईचारा न होने पर आखिरकार सरकारी सभा पूरी तरह विफल रहा। गौरतलब है कि प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट, श्रम कमिश्नर तथा दूसरे कार्यकर्तागण, सीआरपीएफ के जवान तथा पुलिस प्रशासन को लेकर मैनागढ़ के नाचघर में सभा आयोजित किया था, लेकिन आपसी बातचीत के चलते द्विपाक्षिक कोई भी गठबंधन न हो पाने पर आखिरकार यह सरकारी सभा पूरी तरह विफल रहा। श्रमिकों का मांग है कि जब तक उनकी सुरक्षित व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक उनको इस क्षेत्र में रहने देना होगा और तो इस क्षेत्र में विमानबंदर को स्थापन नहीं कर सकता। उनकी जान जा सकती है, लेकिन चाय की चाराओं के संरक्षण में वे अपना जीवन भी न्यौछावर करेंगे। আজকের মিটিং হচ্ছে এখানে মানে আমাদের শ্রমিকরা আমরা প্রায় 2-3 মাস থেকে আন্দোলন করে যাচ্ছি। ডলু চা বাগানে এয়ারপোর্ট যে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আমরা প্রায় গত 2-3 মাস থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আমরা জানি আমাদের কাজের জায়গা যেটা সেটা আমরা সেখানে কাজ করে আমরা কোনো রকম পরিবার প্রতিপালন করছি। সরকার যদি শ্রমিকদের প্রতি যদি সরকারের কোনো দরদ আছে, শ্রমিকদেরকে যদি সরকার নিজের মানুষ করছেন মনে করছেন, তাহলে আমরা আশা করছি আমাদের এই আবদার, আমাদের যে জায়গাটা সরকার আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছে সেই জায়গাটা যেন আর নজর দেন না সরকার। कछा जिले के कठार रोड क्षेत्र में जालुलतला इलाके में सड़क हादसे में 2 स्कूटी चालक बुरी तरह घायल हो गए। गौरतलब है कि बुधुराइल क्षेत्र से बड़े पैमाने पर अवैध तौर पे मिट्टी से लदे ट्रक यातायात कर रहे हैं। रोज करीब दिन रात हजारों ट्रक इस क्षेत्र में यातायात कर रहे हैं। अवैध माटी का व्यापार पुलिस प्रशासन तथा वन विभाग की आंखों के सामने ही हो रहा है। और तो डंपर के चालक दिन में शराब पीकर वाहन चलाते हुए कई क्षेत्र में दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं और लोगों को घायल भी कर रहे हैं। मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। एक तो चालक का कोई लाइसेंस नहीं है, वहीं दूसरी ओर गाड़ी का कोई नंबर भी नहीं है। स्कूटी के सवार दोनों चालक बुरी तरह घायल हैं, जिन्हें सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। इस हादसे को लेकर इलाके के लोगों में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली। ওই তো রাত দিন 24 ঘন্টা পুরো মদ খাইয়া টিপার এলাইতে টিপার চালাইতরা কাটর রাস্তার ভিতরে এরপরে এইরকম স্পিডে চালায় স্কুলের বাচ্চাই না শোন, এরপরে স্কুলের গাড়ি আছে। ঘটনাটা কোন সময় হয়েছে? ঘটনাটা হয়তো আধা ঘন্টা হয়েছে। ঘটনা হয়েছে মানে ড্রাইভার পুরো ড্রাঙ্ক করিয়া খাড়া হইতে পারে না, ড্রিঙ্ক করিয়া পুরা ড্রাইভারে ওখানে স্কুলের বাস ট্রাক একটা মারছে, মারিয়া বাস একটা স্কুলের মারছে, মারিয়া এরপরে ও স্কুটিটা মারছে, স্কুটিটা মারিয়া ও পোস্ট ওটা ভাঙ্গিয়া এরপরে গিয়া পড়ছে। না না মানে জখম কতজন হয়েছে? যখন 2 জনের হয়েছে। তারা বন্ধ করা হোক, আর বন্ধ ওইটাও লাগে কারণ এখানে গত 3 বছর আগে বোধহয় মলিন দাস নামে একটা মানুষে, মলিন দাস নামের একটা সাংবাদিক রে তারাপুর এই আউটপোস্টের সামনে স্পট ডেড করা হয়েছে। ওটাও আমরা খুব দুঃখ যে মানুষ গেলে পাওয়া যায় না, মানুষ থাকলে পাওয়া যায়। ধন্যবাদ। श्रीजर के साउथ पॉइंट स्कूल में पूरे श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया जा रहा है ग्रीष्मकालीन शिविर। ग्रीष्मकालीन शिविर को केंद्रित कर छात्र छात्राओं के बीच उत्साह व खुशी की माहौल देखने को मिल रहा है। अंकन कला, हस्तशिल्प तथा विज्ञान प्रदर्शनी सहित कई और अहम गतिविधियों को लेकर स्कूल कर्तृपक्ष यह समर कैंप आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं में जहाँ खुशी देखने को मिल रही है, तो इसी दौरान स्कूल के शिक्षक शिक्षिका भी काफ़ी खुश दिखाई दिए। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर स्कूल के अध्यक्षा तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से सिलचर साउथ पॉइंट स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बराघाटी सहित उत्तर पूर्वांचल के कई क्षेत्रों में अपना अहम भूमिका निभाता आ रहा है। সাউথ পয়েন্ট স্কুলে একটা প্রদর্শনী চলছে, আপনাদের সেটা বিষয়ে জানতে চাইব এবং কেমন করে আপনারা চালাচ্ছেন, কেমন সাড়া পাচ্ছেন এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্কুল বরাক উপত্যকায় অনেক বছর ধরে সুনামের সাথে কাজ করে আসছে। আমরা অনেক ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি স্কুলকে, তো অনুভূতিটা কীরকম এবং কী কী ইভেন্টস আপনারা 3 দিনব্যাপী এই আয়োজন করছেন? যেটা আপনি প্রথমেই বললেন সাউথ পয়েন্ট সবসময় সুনামে ছিল, ওরকমই সাউথ পয়েন্ট সুনামেই আছে। আর যেহেতু আমরা এই করোনার এফেক্টে এখনও অবধি চলছি, একটা 4th লেয়ার আসছে বা এসে গেছে এরকম একটা চলছে। আর 2 বছর পুরোপুরি পড়াশোনাটার উপরে খুব হ্যাম্পার হয়েছিল বাচ্চাদের।
ওইটাকে আবার নর্মাল জায়গায় আনার জন্যে আমরা এই ইভেন্টটা শুরু করলাম এই বছর প্রথমবার। 3 দিনের ইভেন্ট, এটা হচ্ছে ডন সামার ফেস্ট 2022। এটাতে আমাদের বাচ্চারা সায়েন্স except academics also. Those who are just going to pass HSLC, what is your appeal about today? It's just, I'll say that good luck to you all. Do your best, give your best, and do not take your education for granted. Come to us, visit us. We are all one. There should not be any differentiation among the school, but I can guarantee you will get much more than you expect from South Point High School. So if you want, you can please come and join us and be a part of South Point family. Thank you. समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only resident. Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং पॉइंट शिलंगपट्टी, शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में।
वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में करीमगंज जिले के भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र में स्थित मोकाम टीला इलाके के बीओक के संलग्न क्षेत्र में बिजली से संस्पर्श से जुड़े कांटा तार के साथ संस्पर्श आ जाने पर 2 गरिला का मौत हो गया। सूत्रों के अनुसार शिपांजी रूपी गरिला की मौत होने पर इलाके में दुखद माहौल छाई हुई है। वन विभाग के कार्यकर्ता सीआरपीएफ के जवानों की ओर से जानकारी हासिल कर घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों गरिलाओं के शव बरामद किए। सिल्टर वन विभाग के साथ बातचीत के बाद वहां पर इनका वन्य प्राणी अस्पताल के कार्यकर्ताओं द्वारा इलाज किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। आखिरकार उनके शव को वन विभाग के उद्योग से वन के गहरे क्षेत्र में अंतिम संस्कार कार्य कर दिया गया। एकाएक बिजली के संस्पर्श में 2 गरिलाओं की मौत होने पर वन विभाग के कार्यकर्ता तथा आसपास के लोगों के बीच दुखद माहौल देखने को मिली। फरेस्ट डिपार्टमेंट থেকে খবর আইছে প্লাস আপনার কমান্ডিং অফিসার তার গাড়ি দিয়া শিম্পাঞ্জি টাইপের 2টা মানকি নিয়ে আইছে, একটা নিয়ে আইছে। এটা ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে, এটা সম্ভবত ভালো আছে, জঙ্গলে ছাড়া হয়ে যাব। প্রথমে এগুলো ভালো ছিল, পরে মারা গেছে। মারা গেলে 2টা মারা গেছে। এখন আইছে রিপোর্টটা আমার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে হয়ে আইছে, নিয়ে আসছে রিপোর্ট যে 2টা মারা গেছে। ওইটা 2টা পোস্টমর্টম করা হয়েছে। আমার ডিস্ট্রিক্ট অফিসার আছে এখানে। কটার সময় ঘটনা? ঘটনা অ্যাকচুয়ালি টাইমটা 8টা চলে। আপনি আমরা 10টার সময় ইনফরমেশন পাইছি। কোন ক্যাম্প থেকে এনে দিয়েছেন? ফুলবাড়ি ক্যাম্প, লক্ষ্মীপুর ক্যাম্প। এখন গাড়াইব।
ওকে, থ্যাংক কটার সময় হয়েছে ঘটনা? তো বিএসএফ ডিটেক্ট করছে বলে ধরেন 2 ঘন্টা আগে। আচ্ছা, তারপরে আমরা সমঝাইছি মাহতাব হোসেন লস্কর, এমএইচ লস্কর। কটার সময় জানাইছে আপনারা? মানে এখন থেকে 2 ঘন্টা ধরেন এখন কটা বাজে? 12টা 10টা 10:30 জানাইছি। আচ্ছা, লক্ষ্মীপুর ক্যাম্পে কত নম্বর ব্যাটালিয়ন? 134। बराक घाटी भित्तिक बैडमिंटन प्रतियोगिता शिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के इंडोर स्टेडियम में जोरों पर चल रहा है। इस प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह की माहौल देखने को मिल रहा है। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता आने वाले कल यानी 30 अप्रैल को संपन्न होगा। इस प्रतियोगिता को लेकर आयोजक, कार्यकर्ता तथा दूसरे खिलाड़ियों में उत्साह की दौड़ देखने को मिल रही है। इस संबंध में कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। अंडर 9 4 दिन ব্যাপী আমরা আশা করি সোমবার নাগাদ আমরা ফাইনালটা করব। কেমন সাড়া পেয়েছেন? যথেষ্ট সাড়া পেয়েছি। কোভিড পরিস্থিতি আমাদের জানুয়ারি মাসে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমরা এখন বর্তমানে করেছি এই প্রতিযোগিতা ভবিষ্যতে আলোচনা পাবো। আগামীতে আমাদের 25 বছর পূর্তি আমরা আরও বড় করে করবার চেষ্টা করি, যাতে বাড়িতে ভাইয়ের ছাত্ররা এখানে এসে যোগদান করে এবং নর্থ ইস্ট ব্যাপী উদযাপন করে ইচ্ছা আছে। ধন্যবাদ স্যার। ছোট্ট গ্রামাঞ্চল থেকে কেমন সাড়া পেলেন? এখনো অবধি আমাদের এই বরাকবেলায় আজকে 24 নম্বর প্রতিযোগিতা হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতায় গ্রাম থেকে অনেক শিশুরা এসেছে, অনেক প্রতিযোগী এসেছে, খেলছে, ভালোই খেলছে, অনেক উন্নত মানের খেলা দেখাচ্ছে ওরাও। তাই আমরা আশা করছি যে ভবিষ্যতে আরও আমরা নেক্সট ইয়ার 25 বছর হবে, আমরা আরও ভালো সাড়া पाबो बराकबेली बैडमिंटन। रामानुज गुप्त फुटबॉल प्रतियोगिता में तारापुर एथलेटिक क्लब ने टाउन क्लब के साथ कड़े टक्कर के चलते 1-1 गोल में बराबरी पर रहा। दोनों पक्ष के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन तो किया, लेकिन कई मौका गंवाए। इस प्रतियोगिता में दोनों दल अहम भूमिका निभा रहा है और आज के मैच में 1-1 गोल की बराबरी पर खेल संपन्न हुआ। शिलचर के पब्लिक स्कूल रोड क्षेत्र में स्थित काठिया बाबा के आश्रम में श्रद्धा व मर्यादा के साथ श्री श्री काठिया बाबा के तिरोधान तिथि विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया। इस अवसर पर पूजा अर्चना व दूसरे धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। लगभग 200 लोगों की मौजूदगी में भक्त प्राण लोगों ने पूजा अर्चना किया व महाप्रसाद भी ग्रहण किए। बाद में श्री श्री काठिया बाबा के नवनिर्मित भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में वक्तव्य रखते हुए भक्त प्राण व्यक्तित्व वासुदेव भट्टाचार्य व दूसरे हस्तियों ने आज की तिथि के बारे में विस्तारित खुलासा भी किए। আমরা কয়েক বছর আগে আমরা কয়েকজন সাংবাদিকরাও এসেছিলাম, এই মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল। আজকে আমরা অনেক দিন পরে আসছি, কিন্তু একটা
সুন্দর মন্দির এখানেও দেখতে পাচ্ছি, এখানে পরিবেশটা অন্যরকম, কি বলতে চাইবেন? আজকে আমাদের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের একটা বিশেষ দিন। আমাদের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে আচার্য শ্রী শ্রী 108 স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাটিয়া বাবাজি মহারাজের আজকে তিরোদান তিথি। সেই উপলক্ষে আমরা আজকে আশ্রমে সমস্ত ভক্তরা মিলে উৎসবের আয়োজন করেছি। ওনার আজকে আমাদের গুরুদেবের আজকে পুজো হয়েছে, এখানে বিশেষ পূজা, তারপরে আরতি হয়েছে, তারপরে গুরুস্তুতি হয়েছে। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা ওনার আজকে তিরোদান দিবস আমরা উদযাপন করছি। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের পরম্পরা হংস ভগবান থেকে শুরু হয়েছিল, তারপরে সনকাদি ভগবান, কালক্রমে দেবর্ষী নারদ, উনিও আমাদের সম্প্রদায়ের ভক্ত। তাই আমরা গর্বিত যে আমরা সেই ভগবানের ধারার শিষ্য হয়ে আমরা আজকে গর্ব অনুভব করছি। আমরা আপামর বিশ্ব কল্যাণের জন্য শান্তিও কামনা করছি। আজকের এই পুণ্যতিথিতে আমরা সবাই আপামর জনসাধারণ সবাই যাতে সুখে থাকে, শান্তিতে থাকে এবং সবাই আমরা নিরোগ কামনা করছি। এইগুলো আমার বক্তব্য। পূর্ণাঙ্গ মন্দির আমরা এখানে দেখতে পেলাম। আমরা অনেক আগে দেখেছিলাম, কাজ ফাউন্ডেশন হচ্ছে, খুবই ভালো লাগলো আজকে এসে। ভালো লাগলো আজকে এখানে। অনুভূতিটা কীরকম আজকে? অনুভূতি দেখুন, এখানে শান্তি, এই আসার পর অনেকগুলো মন্দির তো শান্তি পাওয়া যায়, বিশেষ করে কেন গুরু পরম্পরা আমাদের সব গুরুদের পটলাঙ্গা আছে। এখানে আসার অটোমেটিক একটা শান্তি এসে যায় মনের মধ্যে। ভক্তরা যারা আসে সবাই শান্তি পায়। আমরাও সেই চেষ্টা করি ভক্তদের শান্তি দেওয়ার জন্য। আজকে কী তিথি উপলক্ষে আপনার? তিথি তো আমাদের দাদা গুরুজি, আমি শ্রী 108 অশ্বী দাস কাটিয়া ভক্ত, উনি যে গুরুদেব দাস কাটিয়া মহারাজজির আজকে তিরোভাব তিথি। এই উৎসবে আমরা এই তিরোভাব উৎসব আমরা প্রত্যেক বছরই বানাই। এবার আমরা ছোটো করে করোনার মেনে অল্প ভিড় কম হয়েছে, কম লোকের মধ্যে। लखीमपुर के विधायक कौशिक राय ने कछार जिला भाजपा सभापति विमलेंदु राय, रीना सिंह तथा मंडल सभापति संजय ठाकुर व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में राज्य सरकार के माइक्रो फाइनेंस परियोजना के अधीन हिताधिकारियों के बीच चेक वितरण किया, जिसके चलते लोगों में काफी खुशी की दौड़ देखने को मिली। माननीय सुदीप नाथ महाशय के मंचे आसार ग्रहण करार जন্য অনুরোধ করছি। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योतिर्नमस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुखसम्पदः, देशबुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिर्नमस्तुते, आत्मज्योतिर्प्रदीपाय, ब्रह्मज्योतिर्नमस्तुते, ब्रह्मज्योतिर्प्रदीपाय, गुरुज्योतिर्नमस्तुते। आशा करी এই মন্ত্রে সবার মঙ্গল কামনা করি। ধন্যবাদ। हाल ही में दिल्ली में ललित कला एकेडमी के उद्योग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। सर्वभारतीय इस कार्यशाला में पूरे देश भर से केवल 100 कलाकारों का चयन किया गया था, जिनमें शिलचर के मोनिका पाल भी शामिल थीं। असम की ओर से उन्होंने असम को उपस्थापन करते हुए असम राज्य के अमर स्वायत्ता सेनानी शहीद वीरांगना शहीद कनकलता बरुआ का चित्र लोगों के समक्ष तैयार किया, जिसके चलते इस कार्यशाला में अहम तौर पे उनको सम्मानित किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस चित्र को लेकर ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए लोगों को जानकारी तो दिया गया, लेकिन असम की इस वीरांगना महिला की जीवनादर्श कार्यशाला में दर्शाए जाने पर लोगों में काफी खुशी की माहौल है। सभी जानते हैं भारतवर्ष के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे भी स्वायत्ता सेनानी हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर ही छिप कर रह गया है, और इन पन्नों से उजागर कर आम जनता के समक्ष लाए जाने के उद्देश्य से यह कार्यशाला का आयोजन किया गया था। देश भर के विभिन्न क्षेत्र से कलाकार इस कार्यक्रम में योगदान दिए थे,
जिसके चलते कलाकारों में भी काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। ललित कला अकादमी की इस प्रयास के चलते देश भर के लोगों के बीच जहां खुशी की माहौल है, वहीं दूसरी ओर एक दूसरे की क्षेत्र के रहने वाले अमर स्वाधीनता सेनानी तथा देश प्रेम से जुड़े लोगों की कहानियों को जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर मनिका पाल ने पत्रकारों के समक्ष बातचीत के दौरान खुशी व्यक्त किया। साथ ही आने वाले नए प्रजन्म को इस क्षेत्र में और भी रुचिशील बनने के लिए अपील भी किए। हम सभी जानते हैं इस वर्ष भारत का 75 अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इंडिपेंडेंट का। तो इस महान उत्सव में दिल्ली ललित कला अकादमी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक महान शिल्प कर्मशाला का आयोजन किया था। इस कर्मशाला में पूरे देश से 100 आर्टिस्टों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें कन्याकुमारी से लेकर गोवा तक सभी ने काम किया। तो हमारा नॉर्थ ईस्ट के कुछ आर्टिस्ट को भी इनविटेशन मिला, बड़ागवेली से भी मुझे मिला। तो इस महान कर्मशाला में पार्टिसिपेट करके मैं खुद को धन्य सोचती हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट का जो मतलब है वो जब हम लोग हमारा पेंटिंग में ड्राइंग किया तब और भी आकर्षित किया, क्योंकि हम लोग तब भी हम सोचे क्योंकि हमारा देश के लिए कितनों ने बलिदान किया था। क्योंकि हमारा देश को हम जानते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से शुरू करके इंडिपेंडेंट जब 1947 तक बहुतों ने जान गंवाई। तो हमारा पेंटिंग हमारा आसाम का महज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड वीरांगना कनकलता ने कैसे अपना जान गंवाई, इसके ऊपर मैंने जैसे कि हम एक फीमेल आर्टिस्ट है इसलिए मैंने उनके ऊपर में अपना पेंटिंग डेडिकेट किया। ये कर्मशाला 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चली थी और इसमें जो हम लोगों का ये जो एक कर्मशाला हुआ था वो मतलब ऑनलाइन हुआ था, क्योंकि कोविड के ऊपर ध्यान रख के ये कर्मशाला आयोजन किया था। तो इसमें हमारा जो 100 आर्टिस्ट थे सभी के साथ सभी के काम के बारे में बातचीत हुई, सभी स्टेट का काम कैसे हम लोग ने देखा और सबका काम भी बढ़िया हुआ। तो हम लोगों ने मतलब एक के साथ एक कांटेक्ट भी जुड़ी और सभी ने अलग अलग से फ्रीडम फाइटर को लेके काम किया, सबका काम देखा। और इसके बाद भी जो फ्रीडम फाइटर मतलब कॉमन नहीं है, मतलब जो इतिहास में नहीं आए, अपना अपना गांव में अपना अपना शहर में रह गए थे, उनके ऊपर भी काम हुआ। तो हमने और भी जाना, क्योंकि कोई स्टेट में कोई फ्रीडम फाइटर के बारे में हम लोग नहीं जानते, तो उनके बारे में जाना। तो ये जान के बहुत अच्छा हुआ और वो ललित कला का ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे मिला, मैं तो खुद को धन्य सोचती हूँ। और ललित कला को मैंने क्या बोलूँ, उसकी शत प्रणाम जाना करती हूँ, क्योंकि ये एक महान उत्सव जैसा है। इस उत्सव में मैंने पार्टिसिपेट किया, इसलिए खुद को धन्य सोचती हूँ। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बराक घाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने सांस्कृतिक व्यक्तित्व गौतम भट्टाचार्य का हुआ महाप्रयाण, बराक घाटी में छाई दुखद माहौल। हाइलाकांदी जिले में अपनी छात्रा को कुप्रस्ताव दिए जाने पर शिक्षक को किया गया मारपीट, पुलिस ने किया गिरफ्तार। इलाके में छाई हुई है नाराजगी की दौड़। बोरखोला लालबाग क्षेत्र में श्रमिकों के साथ सरकार की आपसी बातचीत की सभा हुआ नाकामयाब, जान जाने पर भी अपने चारागाह को नहीं छोड़ेंगे, कहा श्रमिकों ने। छेजर के काटा रोड क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 स्कूटी चालक बुरी तरह घायल, गैर जिम्मेदाराना डांपर यातायात के क्षेत्र में लोग झेल रहे हैं परेशानी।
बेलचर के साउथ पॉइंट स्कूल में शुरू हुआ ग्रीष्मकालीन शिविर। छात्र छात्राओं में देखी जा रही है खुशी की माहौल। उच्च माध्यमिक विज्ञान शाखा में भर्ती के लिए उत्साह व्यक्त कर सकते हैं छात्र छात्राएं। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।